Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I am going to start your new chapter, that is your chapter number 6, accounting equation. In my previous lectures, I have explained you theoretical part of accounting. Now from this lecture, somewhat numerical portion has been started. The first chapter of this numerical portion is accounting equation. Accounting equation is based on the principle of double entry system, and the formula of doing accounting equation is assets is equals to liabilities plus capital. What is accounting equation beta? An accounting equation represents the relationship between assets and liabilities of the firm, showing total assets of the firm is equals to the total liabilities and owner's capital equity. An accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting. Every transaction has two aspects, debit and credit, and affect either both the sides of the equation or one side of the equation only with equal amount. The accounting equation is based on assets is equals to liabilities प्लस कैपिटल. देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस करता है. हर एक ट्रांजेक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होता है. मैंने आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी बताया था कि हर ट्रांजेक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होता है. अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट आपको कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है. तो इट इज़ ड्यूअल. सो सी बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन जो ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट पर डिपेंड करता है. डबल एंट्री सिस्टम है. इफ़ अगर एक डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट और कॉरस्पेंडिंगली क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है. सो अकाउंटिंग इक्वेशन भी है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जिस पे हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस करता है. नाउ सी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. नंबर 1, कैपिटल. When capital is increased, it is credited, and when a part of the capital is withdrawn, drawings are made, it is debited. देखो कैपिटल क्या होता है, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर उसी का एक पार्ट अगर हम विथड्रॉन कर लेते हैं तो वो जो क्या होता है, ड्राइंग मेड हो जाती है, तो वो पार्ट हमारा क्या हो जाता है, डेबिटेड हो जाता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, आपका एक एक्सपेंस है फॉर द बिजनेस, देयरफॉर एडेड टू प्रॉफिट एंड दस द कैपिटल. Since it is a loss expense for the owner, it is deducted from the कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, तो वो कैपिटल में तो प्रॉफिट होता है तो इसलिए कैपिटल में ऐड कर देते हैं, लेकिन उसको जो है ओनर का लॉस होता है इसलिए उसमें से उसे हम माइनस भी कर देते हैं. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग जो इफेक्ट नहीं डालती है. अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हमारी कैपिटल में प्लस हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ड्राइंग के अमाउंट में से माइनस हो जाता है और फिर वो आपकी कैपिटल में से डिडक्ट हो जाता है. रेवेन्यू जो होती है ओनर्स की इक्विटी होती है. कैपिटल इज़ इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. एक्सपेंसेस ओनर की एक्सपेंसेस होती हैं जिससे कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाती है. ओनर्स इक्विटी. When liabilities are increased, outsiders liabilities equities are credited, and when liabilities are decreased, outsider liabilities are debited. अगर assets की वैल्यू बढ़ रही है, if there is an increase in assets, the increase is debited in the assets account. If there is a decrease in assets, the decrease is credited to the assets account. It is possible if one asset increases, the other asset decreases. Example, purchase of machinery. Thus, machinery increases and cash decreases. See the next point. It is possible that one asset decreases, other asset increases. Sale of machinery. Cash increases and machinery decreases. It is possible that one liability increases, other liability decreases. On dishonor of the bills payable, the bills payable account is debited and the creditors account is credited. Thus creditors increase and the amount of bills payable decreases. If one liability decreases and the other liability increases, ये भी आपका एक रूल है बेटा. Assets increase, liabilities also increase. Example, purchase of machinery on credit. जब वो मशीनरी को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट और क्रेडिटर दोनों हमारे इंक्रीज हो जाते हैं. When an asset decreases, liability decreases. Example, cash paid to creditors. Creditors की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है और कैश में से भी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है. इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल. आउटस्टैंडिंग सैलरी. एक्रूड इनकम. इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल. एक्रूड इनकम इफेक्ट डालता है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी. जब इनकम रिसीव्ड होता है एडवांस में तो एसेट इंक्रीज होती है और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं. Increase in asset without a corresponding increase in liability or a corresponding decrease in another asset means an increase in capital. और अगर कोई liability decrease नहीं हो रही है, कोई asset decrease नहीं हो रही है तो it means capital पे changes आ रहे हैं.
An increase in liability without a corresponding increase in an asset or a corresponding decrease in another liability indicates a decrease in capital. So ये आपके सारे इफेक्टेड हैं जिसके बेसिस पर आपके सारे रूल्स वो करे जाते हैं, ठीक है। और इसके इंक्रीज इन एसेट विदाउट एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये जो रूल्स हैं इनके बेसिस पर ही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। और मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आई विल एक्सप्लेन यू न्यूमेरिकल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, नोट डाउन ऑल द थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर कॉपी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।